Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. भवतामपि भूयान्मे यदि श्रद्धा धते वचः वैशारदीति श्रद्धातः श्रीबालानो च मे यथा. Prahlad Maharaj continued, my dear friends, if you can place your faith in my words, simply by that faith you can also understand transcendent knowledge, just like me, although you are all small children. Similarly, a woman can also understand transcendent knowledge and know what is spirit and what is matter. So faith, Vishwas. Whole spiritual life is a development of faith. Vance Prabhupada writes very nicely. Said if you do not follow the regulative principles, then all doubts will remain. सारे भ्रम रहेंगे आपको. So this faith is a very mysterious thing. In Bhagavad Gita, there is a situation Arjuna says to Krishna, the people worship different things based on their own imaginations. What result do they get? Krishna says, even the faith, whatever they are doing, I give. So faith is very mysterious thing. Faith on something you cannot see. That is called faith. हम कृष्ण को नहीं देख रहे हैं लेकिन विश्वास है कृष्ण है. बड़ा मिस्टीरियस चीज है. Faith builds on faith. थोड़ा विश्वास श्रद्धा से भक्ति शुरू होती है. It's not blind. Then it is reinforced, confirmed. Then again you take one more step. Like you come to know some person is there somewhere और आप देख नहीं सकते हैं तो आप एक चिट्ठी लिखते हो and it replies back, your faith increases. You write one more letter, he replies back, your faith increases. फिर एक और चिट्ठी लिखते हो and then finally आप फ़ोन में बात करते हो. कह रहे? फिर उसके बाद अभी भी आप देख नहीं रहे हो, फ़ोन में आपको आवाज़ आ रही है. उसके बाद वीडियो कॉल करते हो, उसके बाद मिलने चले जाते हो. कह रहे? स्टेप बाय स्टेप. तो सिमिलरली भक्ति मार्ग में भी स्टेप बाय स्टेप फेथ, हर स्टेप में फेथ रीइंफोर्स हो रहा है. आप पहले श्रद्धा है, कुछ विश्वास आया, भक्तों को मिले. दैट इज ऑल्सो नॉट ऑर्डिनरी. श्रद्धा के भी बहुत सारे रीज़न है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न फॉर श्रद्धा इज संगा. जैसे अज्ञात सुकृति कैन ऑल्सो हेल्प, बट देन आचार्य एनालाइज अज्ञात सुकृति भी संग से ही आती है. आपने किसी ने बोला आ जाओ यार एक अच्छा भजन होगा, तो उसके बोलने से आप चले गए और वहाँ भक्तों के संग में आपको भी वो अच्छा टेस्ट लगा. संगा संजायते कामा, तो आपको अच्छा स्पिरिचुअल टेस्ट मिला. श्रद्धा. तो उसके बाद साधु संगा, नेक्स्ट स्टेज. आपने चिट्ठी लिखना शुरू किया. देन भजन क्रिया. In the association of devotees, we are guided, do some bhajana. Then anartha nivritti. Already Krishna का एक response आना शुरू हो गया. Your heart start getting purified. Prabhupada says, mind softened by the chanting of the Hare Krishna mantra. Man Hari Naam se, you can experience it is getting washed. Shraddha, sadhu sangha, bhajan kriya, anartha nivritti, nishtha. When Krishna reciprocates so much, correct? It is mysterious, na? मैं क्या कर रहा है? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. But my mind is becoming purified. So आपका faith reinforce होता है. Blind नहीं है, श्रद्धा से शुरू हुआ, but it is building on faith. Faith is building on faith. Krishna is reciprocating. So then when mind is purified, you get nishtha, correct. Correct, this path is correct.
Then you chant with great attention, Hare Krishna, Krishna, with attention and respect. Then that leads to ruchi. You get great pleasure in chanting. And then after that, bhava, primary love for Krishna starts opening in the heart. We are loving so many things. Now we are able to love Krishna. Love to hai, tendency hai pyar karne ki. But instead of loving some nonsense material things, you start loving the deities. You, apna dil, you can give to the Lord. I've already dil kutte ko diya, billi ko diya, and given to so many material things, then there is no love remaining. Mind is just like many people come to the Lord, but their heart is at their material things only. They cannot love Krishna. But still they have come to Krishna, it's good. Some hope is there. But pure devotee, his mind is withdrawn from everywhere and he offers his love to Krishna. Primary love for the Lord awakens now, and then prema, intense love for Krishna. Therefore in the Bhagavatam, the situation as gopis is considered supermost. Whole day when Krishna used to go to play, whole day they will find unbearable. Can't stand separation from Krishna. When Krishna will come, when Krishna will come, when Krishna will come. Correct? Krishna खेलने जाते थे दोस्तों के साथ. And all the gopis will be waiting. कब आएगा भाई? कब आएगा? And they'll be waiting in queue when Krishna enters back from the forest. They're waiting to see beautiful Krishna. Correct? सब wait करते थे. But that is spiritual. Totally spiritual. Separation from, intense separation from Krishna. Sambhoga and Viraha. Sambhoga means meeting, Viraha means separation. Separation from the Lord is more sweet than meeting. This is mysterious. That's why our sampradaya is that Acharya teaches you, Prabhupada says, Guru teaches you how to live in intense separation from the Lord. And that is perfection. If you can constantly feel separation from Krishna, and in separation offer service to Krishna, highest. You reach highest situation of Krishna consciousness. Not meeting. कुछ लोग बोलते हैं ना, अरे कल भगवान से मिले थे. That is cheating. Mostly cheating. Therefore Prabhupada says, the Goswamis went to Vrindavan, they did not speak all the nonsense. रात को उधर भगवान से मुलाकात हुआ, ये हुआ. They did not speak that. What did they speak? Where are you? Kutaha, Kutaha. क्या श्लोक, अब किसी को श्लोक याद है? ओ ललिता, ओ विशाखा, कुतहा, किधर हो भाई, किधर हो भाई? ये नहीं कि अभी मिल के आया. That is not proper taught us, correct? Many times we meet people. पता है वृंदावन गए थे, हाँ क्या हुआ? हम वो ढूंढ रहे थे, एड्रेस ढूंढ रहे थे, तो एक बच्चा है बोला उधर चले जाओ माँ जी. हाँ ठीक है, फिर क्या हुआ? वो बच्चा गुम हो गया. हाँ कृष्णा ही था वो. मैंने कहा ठीक है, आपके लिए तो आएगा कृष्णा जरूर. So they make it so cheap. They are not saying that having tea every day, they are eating meat, they are drinking wine, and Krishna will come and show them where to go. Krishna is so easy to achieve. So therefore Prabhupada says, don't make Krishna consciousness cheap. Don't do that. Don't make it a farce. Be sincere and serious. And definitely, yesterday we were reading, by force the result will come. The result will be manifested in front of you. Book. Krishna will keep in your hand. Tick. That is how it is. Very mercifully, Krishna will put in your pocket. Take. The devotee is not asking, but Krishna will give him all the spiritual blessing, like Prahlad Maharaj is saying, you hear to me by faith. Please hear by faith. Let it be. Let Krishna consciousness manifest in your heart. Let Lord Chaitanya, Krishnadas Kaviraj Goswami says, no, let Lord Chaitanya be manifest in the innermost core of your heart. Let it be a wish. So this is very important. Prabhupada had come to India, this famous instance I told many times. आपका मूवमेंट शुरू हुआ था अमेरिका में. उसके बाद क्या हुआ था कि प्रभुपाद जी की तबीयत खराब हो गई थी.
लेकिन थोड़ा हो गया था अभी शुरू। तो प्रभुपाद जी इंडिया आते हैं वापस, वहाँ उनको ये एलोपैथी का कोई इंटरेस्ट नहीं था। इंडिया आते हैं, बोलते हैं वहाँ सूरज है वृंदावन में, थोड़ा दवाई खाएंगे ठीक हो जाएंगे। हॉस्पिटल नहीं गया उनका, हाँ मना किया, हॉस्पिटल से भागे, पहले हॉस्पिटल में निकालो तो उनको निकालो उधर उधर से। तो एनीवे जो भी हुआ, इंडिया आए, थोड़ा 6 महीने थोड़ा वृंदावन में धूप में रेस्ट किया, कह रहे अपना दवाई खाया, ठीक हो गया। उसके बाद प्रभुपाद जी वापस अमेरिका आए। जो वापस अमेरिका आए तो बहुत सुंदर इंस्टेंस है, डिवोटी लोग बहुत प्रेम से पागल हो गए थे, खुशी से, बहुत जोर का संकीर्तन हो रहा था खुशी से। संकीर्तन मतलब एक आदमी गाता है, दूसरा लोग रिपीट करता है, तब वो संकीर्तन होता है, नहीं तो एक कीर्तन हो जाता है ना। कीर्तन जो गाता है ऐसा गाने का कि सब लोग जोर जोर से रिपीट करें, बस वो लक्ष्य रखेंगे, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कैसे गाने का, है ना। कभी क्या होता है अपने को ही सुनते रहते हैं, लेकिन संकीर्तन अब नहीं बनता। संकीर्तन मतलब लोग भी जोर का रिपीट करें, है ना। आप देखिए पुराने कीर्तन में ये बहुत अच्छा लक्षण है। और क्या क्या करें कि ऐसा हो जाए। आप देखिए वो जो लेडीज़ भी ऐसे ऐसे नहीं करते थे पहले, ये बकवास चीज़ है। क्या करते थे वो, बहुत ज़ोर से हरि नाम को रिपीट करते थे, इतना ज़ोर से कि आपको लेडी आदमी में फ़र्क भी नहीं कर पाओगे, इकट्ठे रहते थे, ऐसा नहीं आगे अलग से है और ये नाटक चल रहा है, ये बकवास है, डेकोरेशन। सारा आदमी उसी को देखता रहता, करेक्ट। जो पीछे ब्रह्मचारी वो भी वही देखता रहेगा। आई थिंक इट्स अनर्थ। बट द मेन पॉइंट इज दैट कितना ध्यान से दे यूज्ड टू रिपीट द होली नेम, कितना ध्यान से। आप उनका फोटो देखो, वीडियो देखो, आंख बंद है, जोर से हरि नाम को रिपीट कर रहे हैं। तो जो सिंगर है उसका लक्ष्य ये होना चाहिए कि सब लोग ध्यान से हरि नाम को रिपीट करें। नाम प्रभु खुद आनंद देंगे, आप फोर्स नहीं कर सकते। नाम तो भगवान खुद है, करें। जब भगवान आपके अटेंशन और प्रार्थना से खुश होंगे तो ऑटोमेटिक हरि नाम का आनंद बिखरेगा, करें। हम ट्यून बदल के ये करके वो करके उसको फोर्सफुली नहीं ले सकते। भक्ति मार्ग ऐसा है कि फोर्सफुली आप कृष्ण से कुछ नहीं ले सकते, है ना। तो जब नाम प्रभु खुश हो जाते हैं, है ना, जब दिल से भक्त गाता है भगवान मेरे को स्वीकार करो, तो उसकी जो पुकार है वो सबके दिल को छूती है और वो भी पुकारने लग जाते हैं। वो असली कीर्तन है, कह रहे। और आपके बोले बिना, बोलने की जरूरत भी नहीं। कभी क्या कहता, बार बार बोलते हैं बोलो 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 बोलो, अरे उसको भाव ही नहीं लग रहा, वो क्यों बोलने का मन ही नहीं आ रहा उसका, है ना। लेकिन हाँ भाव, तो कीर्तन का जो सिंगर होता है उसके दिल में भाव होगा तो लोगों को भी भाव आता है, और फिर वो भी रो रो के, मतलब आंसू की जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत प्रेम से कृष्णा हमको स्वीकार करो, स्वीकार, उसका भाव छूता है। एक बार ही हमको याद है, हम पहला जन्माष्टमी किया था, हम टाउन हॉल में किया था, उसमें कुछ लोग थे नहीं हमारे पास, कुछ स्टूडेंट्स थे, लेकिन हमारा स्टूडेंट प्रीचिंग बहुत सक्सेसफुल था उस समय। तो एक साइड में लड़के, एक साइड में लड़कियां, जितनी थी हमने बैठा दिया, और हॉल में सब लोग बैठे हुए। हमने सारे ये जो वैष्णव सॉन्ग उनको आते थे सबको, यानी एक एक करके गाओ। तो एक साइड गा रहे हैं, रिपीट हो रहा है, गा रहे हैं, रिपीट हो रहा है, चलता रहा। बहुत लोगों को बोला कैसा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज बहुत इनोसेंट थे, बहुत दिल से कर रहे थे गाना, लोगों को बहुत। और जनरली जन्माष्टमी क्या होता है, टाइम ख़त्म नहीं होता, 12 बजे तक ना, बहुत लंबा हो जाता टाइम, मतलब ऐसे निकला जैसे पता भी नहीं चला हम लोगों को, ठीक है। तो भाव हो गया तो कोई भी चीज़ सुंदर हो जाती है। सो एनीवे, तो बहुत भाव से कीर्तन हो रहा था और लोग बहुत खुश थे, बहुत ही, मतलब इतना कि कुछ जोर जोर के वॉम्पर्स बज रहे थे। किसी का वॉम्पर बजा के कुछ हाथ कट गया था, वो दिख नहीं रहा था उसको, जैसे होता ना, इतना एक्सट्रेसी। एंड प्रभुपाद जी आए, वो बहुत फेमस कीर्तन है, रोरिंग कीर्तन। एंड देन उसके बाद एयरपोर्ट में एक होता है, हमेशा लॉन्च होता है, अगर आप रिक्वेस्ट करो आपको मिल जाता है, कोई वीआईपी हो। वहाँ पे उन्होंने लॉन्च में प्रभुपाद जी को रिसीव किया और वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ, और बहुत फेमस है प्रेस कॉन्फ्रेंस। सो प्रभुपाद जी छोटा लेक्चर भी लिए उधर। तो आई हर्ड सन्यासी ने, 2 दिन सन्यासी लोगों ने, उनका मेमोरीज में है वो लेक्चर, बहुत छोटा लेक्चर। प्रभुपाद जी बैठे थे आसन में ऐसे, तो थोड़ा झुके सबकी तरह,
प्लीज बिलीव मी व्हेन आई टेल यू यू आर नॉट द बॉडी. जब मैं आपको बोल रहा हूं आप शरीर नहीं हो आत्मा हो, मेरे में विश्वास करो. तो बोल रहे थे, इतना जोर से बोला था, इतने विश्वास से बोला था कि सबका दिल हिल रहा था. मतलब बहुत चीज़ सुना है, बहुत लोग बोलते हैं मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, लेकिन जब प्रभुपाद जी सबको देख के बोले थे ना, इसको विश्वास करो आप शरीर नहीं हो आत्मा हो, बिकॉज यही फाउंडेशन है. आप देखिए प्रभुपाद जी कितना प्रचार करें, हमेशा इस चीज पे हिट करते रहे, बिकॉज ये आदमी स्वीकार कर लिया सब कुछ स्वीकार कर लेगा, और इसको नहीं स्वीकार किया भक्ति को कभी स्वीकार नहीं करेगा. क्या ना? जैसे बहुत लोग इतना भी स्वीकार नहीं किया मैं शरीर नहीं आत्मा, बिकॉज अगर आप ये समझ के शरीर नहीं आत्मा हो तो आपकी एक्टिविटी तो स्पिरिचुअल हो जाएंगे फिर, है ना. अगर ये तो फाउंडेशन है ना. तो अगर हम समाज में प्रचार के लिए जाते हैं, पहली चीज लोगों को कन्विंस करना है, जैसे कृष्ण ने अर्जुन को क्या पहली चीज कन्विंस करी थी 2nd चैप्टर में, आप शरीर नहीं हो आत्मा हो. ये प्रचार का हमारा पहला चीज है. शुरू में ठीक है, इधर उधर हम कहते हैं कैसे हो, हवा कैसा है, मौसम कैसा है, ये तो करना ही पड़ता है. पहले ग्राउंड बनाते हैं, जैसे पहला चैप्टर गीता का ग्राउंड बन रहा है ना. ग्राउंड बना, रिश्ता बना, फिर उसके बाद पहला चीज ज्ञान, आप शरीर नहीं आत्मा हो. ये अगर आप कन्विंस कर दोगे किसी आदमी को, तो उसका स्पिरिचुअल लाइफ फिर चलना शुरू होगा. ठीक है. लेकिन जो आप उसको समझा रहे हो, थोड़ा लॉजिक तो दोगे, रीजन दोगे, लेकिन उसको आप पे विश्वास करना पड़ेगा. अभी उसको दर्शन नहीं है, कह रहे. तो बहुत लोगों को आप बताना भी चाहते हो, उनको विश्वास नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाता है. ट्रू. तो इसलिए हम शुरू में क्या करते हैं, ज्ञान देने से अच्छा उनको संकीर्तन में बुलाते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है कीर्तन. और कीर्तन में जब उसको आध्यात्मिक आनंद का अनुभव होता है, देखो प्रभुपाद से जो कीर्तन लीडर है, he should be able to create ecstasy in the heart of the listener. जो लिसनर है उसके दिल में आध्यात्मिक आनंद, मतलब खुजली होनी चाहिए अंदर खुशी. ये उसका बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज पहले प्रचारक कुछ नहीं कर सकता, पहले कीर्तन लीडर को उसका दिल खोलना है ना. ट्रू है नहीं? पहले उसका बहुत बड़ा काम है, उसको पहले दिल खोलना, आदमी खुश हो जाएगा आदमी, हाँ बहुत. उसके बाद जो बोलोगे समझ लेगा. इसलिए कीर्तन प्रवचन के पहले एक अच्छा कीर्तन होगा तो लोग आराम से सब समझ लेते हैं, सब एक्सेप्ट कर लेता, बिकॉज ऑलरेडी उसको बहुत आनंद आ रहा है. हाँ सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, जो बोलो. इसलिए सुबह सुबह अगर आप अच्छे से जप करोगे, जब भी, और जप करने के बाद आप प्रवचन सुनोगे, या जप करने के बाद प्रभुपाद की किताब पढ़ोगे, एक एक शब्द दिल के अंदर चला जाता है ना. लेकिन आप जप नहीं करो और पढ़ने का कोशिश करो या प्रवचन से, कोई फायदा नहीं. आपको दिल अभी बहुत हार्ड है, उसमें कुछ जाता ही नहीं अंदर. ठीक है ना. तो सब कुछ कनेक्टेड है, सब कुछ कनेक्टेड. करेक्ट. मैं कोई बोल रहा था शुरू में भजन भोजन, बस बात नहीं करो ज़्यादा, भजन भोजन, अच्छा सा कीर्तन, अच्छा सा प्रसाद खिलाओ, आदमी का पहले दिल खोलो. कह रहे प्रचार करते हैं, ठीक है, दैट इज, उसका भी अपना रोल है, सिस्टमैटिकली समझाने का काम है. सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो द पर्सन हैज़ टू एक्सेप्ट, हमारा लक्ष्य ये रहता है प्रचार में, ही हैज़ टू एक्सेप्ट द डिसेंडिंग प्रोसेस. तब आपने प्रचार कर दिया, मतलब वो विश्वास से गीता के भागवत के शब्द सुनना शुरू किया, बस तब उसका आध्यात्मिक जीवन शुरू होगा. जब तक वो विश्वास से शब्द प्रमाण को नहीं स्वीकार करेगा, उसका आध्यात्मिक जीवन शुरू नहीं हो सकता. आप लॉजिक रीजन से कुछ नहीं कर सकते, वो शुरुआत है, खाली उसको ध्यान से सुनने का. किसी ने प्रभुपाद जी को बोला ना, क्या वैदिक टेक्नोलॉजी क्या है, वैदिक टेक्नोलॉजी क्या है, मैं आपको बताया था क्वेश्चन. उसने ये किताब पढ़ी, एक डिवोटी ने, वो किसी अमेरिकन ने लिखी थी, इंडिया आया था तो उसने लिखा भाई इंडिया में तो बड़े बड़े विमान थे, पहले पुष्पक विमान था. उस तो बड़ा आश्चर्य हुआ. तो तरह तरह के उसने दिखाया कि अर्जुन के ऐसे वैदिक, मतलब अद्भुत चीज़ें जो इंडिया के शास्त्रों में लिखी हुई हैं, तरह तरह के वेपन्स, तरह तरह के विमान, ये सब. तो उसने एक किताब लिख दी अमेरिका में, और एक भक्त ने उसको पढ़ लिया. पढ़ने के बाद प्रभुपाद जी को पूछा कैसे बताएं लोगों को ये सब वैदिक टेक्नोलॉजी. तो प्रभुपाद जी लिखे वैदिक टेक्नोलॉजी मीन्स गुरु परंपरा. चुप हो गया. एक्चुअली दैट इज वैदिक टेक्नोलॉजी. वैदिक टेक्नोलॉजी मीन्स गुरु परंपरा में ध्यान से सुनो, दैट इज वैदिक टेक्नोलॉजी, दैट इज द प्रोसेस. समझ रहे?
वो एक चीज पकड़ लो, आपको पूरा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। क्या चीज पकड़ लो? गुरु परंपरा। आप गुरु परंपरा को स्वीकार करो, और वही हमारा सबसे बड़ा सक्सेस है। हमारा इस जीवन का सबसे बड़ा हमने काम ये किया है, हमने एक सही गुरु परंपरा को स्वीकार किया, बस उसकी वजह से हमारा आध्यात्मिक जीवन चल रहा है। करेक्ट? हमारा आध्यात्मिक सबसे बड़ा भाग्य हमारा क्या है? क्या होता है? बोलते हैं सबसे बड़ा ट्रेजर, हमारा सबसे बड़ा ट्रेजर है विश्वास। और किस पे विश्वास? गुरु परंपरा पे विश्वास। गुरु की वजह से ही कृष्ण मिलते हैं, है ना? तो हमारे गुरु मतलब वो तो किसी गुरु के शिष्य भी हैं। तो गुरु परंपरा पे जो विश्वास हमारा है वो बढ़ता रहेगा, आपका आध्यात्मिक जीवन बढ़ता रहेगा। लेकिन ब्लाइंड नहीं है, इसलिए जब आप ध्यान से बैठ के, मेरा रिक्वेस्ट, एटलीस्ट 1 घंटा जब आप पढ़ेंगे, आपका मन सब्जेक्ट में जाता रहेगा। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, 2 चीज से अगर मन विमुक्त हो जाता है तो शुद्ध भक्ति बोलते हैं। मैं इसको एनालाइज कर रहा था, मैं सुबह देखा क्लास में, बहुत पुराना 2 साल पुरानी क्लास डाली है आज का। सोचा था क्या, अरे तब का रियलाइजेशन। ज्ञान मत देखो, इन शरीर को कैसे सुख मिलता है? इंद्रिय भोग दे दो। तो अगर आप इंद्रिय भोग में लगे हुए हैं तो शुद्ध भक्ति नहीं है। ठीक है? कर्म। ज्ञान, अगर आप कोई चीज जानने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें भी आनंद आता है। हाँ मेरे को पता है, ये भी मेरे को पता है, ये भी आनंद है, ये भी आनंद है। ये सटल आनंद है, ग्रॉस आनंद है। जैसे आपको मैं कुछ खाना खिलाए, मजा आया, ये ग्रॉस आनंद है। ठीक है? अगर आप मैं हारमोनियम खोल के दिखाया कैसे बनता है, हाँ ये सटल, उसमें भी सटल आनंद आता है ना, मेरे को पता चला, वो भी आनंद है लेकिन वो सटल है। आप समझ रहे हैं? मैं आपको ये दिखाऊं कैसे ये अटैच होता है, वो उसमें भी आनंद आता है, और मेरे को पता चल गया एक चीज, एक तरह का सेटिस्फैक्शन आता है। लेकिन जब इसका कृष्ण की सेवा से रिश्ता है तो बिल्कुल ठीक है। अगर आप हारमोनियम खोल के देखना चाहते हो कैसे अटैच होता है, क्योंकि कल अगर कुछ काम नहीं किया आप ठीक कर सकते हो, तो वो तो ठीक हो गया। लेकिन आप जानने की कोशिश कर रहे हो कृष्ण की सेवा से मतलब नहीं है, ये एक आपका बेमतलब का अहंकार ही बनेगा। बस जड़ विद्या माया और अंधकारा बन जाएगा, वैभव बन जाएगा। कह रहे जड़ विद्या जो कृष्ण की सेवा में जाने वाली है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन खाली आप जानने की इच्छा कर रहे हो और उसका सेवा से कोई मतलब नहीं है, तो दुनिया में कोई अंत है क्या इन चीजों का? कोई अंत है क्या? कोई अंत नहीं है। और ये जो दुनिया में नॉलेज है भी, ये तो स्पेकुलेटिव नॉलेज है, गलत भी हो सकती है, उसके पीछे क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो आप जानना चाहते हो घास बाहर कैसे उगती है, ठीक है? अगर आप कृष्ण के लिए अच्छा गार्डन बनाना चाहते हो तो मतलब है, लेकिन अब वैसे हाँ कैसे पता है, मेरे को ये पता चल गया, मतलब क्या उसका? खाली आपका घमंड है ना, जैसे आपको पता चल जाए कोई चीज, हाँ, लेकिन उसका कृष्ण का सेवा से रिश्ता हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन रिश्ता नहीं है। देखिए ऐसा नहीं है, ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, भक्त भी कर्म करता है, लेकिन वह कर्म कृष्ण की सेवा के लिए करता है, लेकिन कर्मी कर्म करता है अपने इंद्रिय भोग के लिए। ये कर्मी और भक्त में फर्क है। सिमिलरली ज्ञान योगी भक्त में क्या फर्क है? भक्त भी जानने की कोशिश करता है, जैसे गोपाल वृंदावन के जब उनको ऐसा अनुभव हुआ कि कुछ आज अपशकुन होने वाला, वो कृष्ण को ढूंढने लग गए थे सारे, नंद महाराज, सारे मदर यशोदा, सब, उनको लगा आज कृष्ण मरे, तो वो भाग रहे थे, ढूंढ रहे थे, उनको गाय के पदचिन्ह दिखे, कृष्ण के पदचिन्ह दिखे। वो भी ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान कृष्ण की सेवा के लिए जा रहा है, तो वो ज्ञान गलत नहीं है। लेकिन आप बैठो जंगल में, सारे जानवरों के पदचिन्ह ढूंढ रहे हो, उस ज्ञान का मतलब क्या है?